Number 1, 3.1. A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. That is a mass of the block. A horizontal force F will be equals to 5 Newton is applied to the blocks. Find A point, the acceleration produced in the block, and B, the velocity of the block after 5 seconds. You can see this is a given data. Mass will be equals to 10 kg, force is 5 newtons, and time is 5 seconds. The initial velocity will be equals to 0. What we will be calculate that we will calculate the values of acceleration and final velocity by using a formula, Newton's second law of equation. F is equals to ma. Acceleration we can calculate it with F is equals to F over m will be equals to acceleration. So we will be putting the value of force and mass, and then we calculate the value of acceleration will be equals to 0.5 meter per second square. Final velocity, how we can find a velocity? By using our first equation of motion. बेटे first equation of motion क्या थी हमारे पास? Final velocity will be equals to initial velocity plus product of acceleration with time t. So final velocity हमें पता है कि initial velocity क्या है? 0 है. तो 0.5 multiplied by 5, the final velocity will be equals to 2.5 meter per second. The problem is 3.2. The mass of a person is 80 kg. What will be his weight on the earth? What will be his weight on the moon? The value of acceleration due to gravity or of moon is 1.6 meter per second square. As you can see that given data, mass will be equals to 80 grams. As you can see that mass will be equals to 80 kg and value of g will be equals to 10 meter per second square, and value of g on moon will be equals to 10 meter per second square. Find value of weight on earth and weight on moon. बेटे you can see in numerical number 3 हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर मून पे वैल्यू जो है वो जी की हमने कहा था वेरी करती है प्लेस टू प्लेस. तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एज वी नो दैट, as you can see that weight on earth will be equals to mass into value of g on earth. Weight will be equals to 80 multiplied by 10, which is weight in on earth will be equals to 800 newtons. And what is the weight on moon? What is the weight on moon? Weight on moon which is equals to m multiplied by g. Value of g, gravity की value on moon 80 multiplied by 1.6. so you can write over here. हमें पता है कि फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होती है? वेट के, और वेट विल बी इक्वल्स टू एम जी. बेटे यही हमने जस्ट फॉर्मूला यूज़ किया और इसमें वैल्यूज ऑफ जी कैलकुलेट करनी है. वेट ऑन मून विल बी इक्वल्स टू 128 मीटर. Now you can see over here problem number 3.3. What force is required to increase the velocity of 800 kg car from 10 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds? What is the force? बेटे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? फोर्स कैलकुलेट करें. अगर वेलोसिटी वेट गिवन है 800 kg और कार की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकेंड. एंड गिवन टाइम कितना हमारे पास? टाइम विल बी गिवन आउट 16 seconds. So how we can calculate the value? That is, a mass will be equals to 800 kg and initial velocity will be equals to 10 meter per second, final velocity 30 meter per second, and given time is 10 seconds. We will find क्या करना है? हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन, हमें पता है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. टाइम आपके पास गिवन है 10 seconds और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो वी will calculate the value of acceleration by putting the values. According to
Newton's second law of motion, F is equals to ma, force will be equals to 800 multiplied by 2, which will be equals to 1600 newtons. Now we'll move 3.4. हम 3.4 की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं. ये पॉइंट पे क्या पूछा गया है? आ 5-gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with a velocity 300 meter per second and the mass of gun is 10 kg. Find the recoil speed of the gun. कहता है रिकॉल स्पीड कैलकुलेट करनी है हमने गन की. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिकॉल स्पीड. दैट इज़ अ गिवन डाटा. मास ऑफ अ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमारे पास कितना गिवन था? 5 ग्राम्स. बेटे एज वी नो डैट कि हमें जब भी किसी वैल्यू को ग्राम्स में गिवन होगी तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केजीज में. और 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स के. वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ अ गन 10 किलोग्राम्स. कैलकुलेट क्या करनी है वैल्यू? वेलोसिटी ऑफ अ गन. अब सोल्यूशन हमें पता है बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले मोमेंटम जो है वो क्या है? ज़ीरो है. बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या फायरिंग एंड इक्वल्स टू अ फाइनल मोमेंटम. तो बिफोर मोमेंटम तो ज़ीरो है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू m mass of a bullet into velocity of a bullet plus mass of a gun into velocity of gun equals to 0. So we'll be putting the values over here and that we calculate the value of Vg. क्या होगा हमारे पास? 1.5 divided by, that will be divided by 10 over there. So we can calculate the value of G. Now class, we will going to discuss problem number 3.5. Look at over here. An astronaut weighs 70 kg. He throws a wrench of mass 300 grams at a speed of 3.5 meter per second. Determine. First point पे determine क्या करना है? Speed of astronaut as he recoils away from the wrench. And the second, the distance covered by the astronaut in 30 seconds. अब दो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा है. कौन कौन से हैं? गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले गिवन है मास. मास गिवन है ऑफ एस्ट्रोनॉट का, वो कितना है? 70 kg. और जो है हमारे पास मास रेंच का वो कितना है? 0.3 kg. अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेंच भी गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड. टाइम गिवन है 30 मिनट्स. हमें पता है कि हम मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं हमेशा किस में? सेकंड्स में. तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. सो वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम. So next find the value of velocity of a astronaut and a displacement. दो चीज़ें उसने कहा है. डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है और स्पीड क्या है एस्ट्रोनॉट की एज ही रिकॉल्स अवे फ्रॉम द रेंच. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? बाय यूजिंग अ लॉ ऑफ conservation of momentum, mass of a wrench, velocity of wrench plus mass of a astronaut and velocity of astronaut equals to 0. So we'll putting the values. हमारे पास सब वैल्यूज़ गिवन है. VA कैलकुलेट करना है. दैट VA will be equals to minus 0.015 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. बेटे जी यहाँ पे ये प्लस है, जब ये साइड पे जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -70 VA. Clear? So calculate the value of distance as we know that V equals to D over T. So D will be product of V multiplied by A. हमने यहाँ पे velocity जो कैलकुलेट किया एस्ट्रोनॉट की वो पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? गिवन टाइम के साथ. So distance will be equals to 27 meters. Now we will move towards 3.6 problem. This is a 6.5 multiplied by 3 kg bogie of a good train is moving
with a velocity of 0.8 meter per second, another bogie of mass m2, हम पहले mass m1 गिवन है विद अ वेलोसिटी v1 0.8 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड जो है बुगी का मास कितना है 9.2 10⁻³ kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी v2 कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद फर्स्ट वन, जब एक बुगी दूसरे के साथ कोलाइड करती है एंड कपल टू इट का मतलब है कि आपस में अटैच हो जाते हैं, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बुगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो आपस में कपल्ड हो जाती हैं उस पॉइंट पे हमने उनकी क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. ओके क्लास, विल सी. Given data is a mass m1 6.5 10⁻³ kg, we will be converted 6500 kg, इसको कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड. हम इसके किस तरह से पॉइंट को मूव करते थे वो वाला मेथड यूज़ किया गया. वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m2 9.2 10⁻³ एंड vt वेलोसिटी दिस. आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, उसने कहा है क्या कहा है, कपल टू इट, कपल हो जाएंगे, इट मीन्स स्टिकी हो जाएंगे. तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्राइम इक्वल्स टू v. सो m1 v1 according to a law of conservation of momentum, m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. हमें हमने कहा क्या है कि v1 prime equals to v2 prime equals to v. So we'll be putting the value of v. हमें v ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो हमने इसको सॉल्व करना है, उसका आंसर ये आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा. विल बी डिवाइड, ये वैल्यू क्या होगी 16240 डिवाइडेड बाय 15700. सो विल बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. न्यूमेरिकल नंबर 3.7. 3.7 A cyclist weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest. Starts from rest mean initial velocity क्या होगी 0 होगी, and applied force कितनी force है 90 newtons and in time 8 seconds. Then he continues at a constant speed from another 8 seconds. T1 भी given है, T2 वो कहते हैं पहले टाइम T1 में उसने इतनी फोर्स के साथ बाइसाइकिल मूव की, उसके बाद उसने दोबारा कांस्टेंट स्पीड 8 सेकंड में ही कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस s कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट. जी बच्चे, फोर्स कितनी है हमारे पास गिवन 80 न्यूटन, ठीक है. टाइम T1 8 सेकेंड्स, टाइम T2 8 सेकेंड्स. Vi इनिशियली उसने कहा था इट ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी. सबसे पहले फाइंड क्या कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला, हमें बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए कहा है डिस्टेंस. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन बाय यूजिंग अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इज इक्वल्स टू ma, acceleration will be equals to f over m. So acceleration 1.5 meter per second square. So हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी बेटे गिवन क्या है 0 है, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. अब इस वैल्यू में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो s इज इक्वल्स टू 1/2 1.5 इंटू 8 स्क्वायर, s1 की वैल्यू निकल आएगी. सो विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. Vf विल इक्वल टू इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो AT की वैल्यू बस पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी. S2 हमने पढ़ा है कि V इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम. सो S2 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8, S2 इक्वल्स टू 96. टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. S1 इक्वेशन 1 एंड S2 इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा 144 मीटर्स. नाउ बच्चे वी विल मूव टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3.8.
A ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height 1.8 meter. Mass कितना है 0.4 kg और हाइट कितनी है 1.8 मीटर. द बॉल रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रेट अपवर्ड विद अ हाइट 0.8 मीटर. हाइट h2 भी गिवन है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स और की मैग्नीट्यूड कितना होगा अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, कितना अप्लाई करेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है. The given data is mass is equals to 0.4 kilograms and height h1 which is equals to 1.8 meter and height 2 will be 0.8 meter. Calculate velocity just before hitting the floor. पहले हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कि जब वो हिट कर रहा है फ्लोर पे हिट करने से पहले. तो v1 विल बी इक्वल्स टू √2gh1. हमें एज वी नो डैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g, वी कैन बी पुटिंग 10 मीटर पर सेकेंड और हम 9.8, हम इनमें से कोई भी वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं. तो v1 की वैल्यू निकाल ली. अब द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, कैलकुलेट जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग v2. So the formula is same but the height will be different. We will use the value of height h to 0.8 meter. So v2 will be equals to 2 multiplied by 9.8 into 0.8. So velocity will be equals to 3.96. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. बेटे क्या कहा था, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स. हमने पढ़ा है कि इम्पल्स जो होता है हमारे पास किसकी इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है. मैथ्स गिवन है, v2 कैलकुलेट कर चुके हैं, v1 कैलकुलेट कर चुके हैं. इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में और विल बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ चेंज इन मोमेंटम. डेल्टा p इक्वल्स टू 3.96 न्यूटन सेकेंड्स. The last numerical of this chapter, जी बच्चे, the last numerical is 3.9. Two balls of masses 0.2 kg, mass m1 given है and 0.4 kg m2 given है, are moving towards each other with velocities v1 and v2 given है. v1 20 meter per second and v2 is equals to 5 meter per second. After collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 6 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मैस जो बॉल था उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 6 मीटर पर सेकेंड v1 प्राइम ये हो गई. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg. अब हमें m2 मैस की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो फॉर दिस कैलकुलेशन वी विल बी यूज द फॉर्मूला. गिवन डाटा इज mass 1 velocity v1, mass 2 velocity v2 is given. Velocity of after collision, velocity of mass 1 is also given. Calculate velocity of final momentum. According to equation of total momentum before collision is equals to total momentum after collision. So we'll be putting the values. v2 prime will be equals to 2 meter per second. The velocity of the 0.4 kg ball after the collision is 2 meter per second. I hope you can understand these numerical problems, and this is the end of this chapter. Okay, Jai Allah Hafiz.